The Bible says in John chapter 1 and verse 4, बाइबल हमें यूहन्ना 1:4 में बताती है that in Christ was life, and that life was the light of men. कि उसमें यानी मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। Jesus told us we're to be the light of the world. What does यीशु ने हमसे कहा कि हमें जगत की ज्योति होना है। that mean? इसका क्या मतलब है? In the old covenant, पुरानी here वाचा we में read of the light as the life of Jesus. It's और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु का जीवन वो ज्योति है। very clear. In ये बिल्कुल स्पष्ट है। him was life, उसमें जीवन था and that life was the light of men. और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। So that's why he said, I am the light of the world. इसी वजह से उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। In John chapter 8 and verse 12, I am the light of the world. यूहन्ना 8:12 में यीशु कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। But he also said in John chapter 9 and verse 5, पर यूहन्ना 9:5 में यीशु ने ये भी कहा that I am the light of the world only as long as I am in the world. जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की मैं ज्योति हूँ। Once I leave the world, एक बार मैं संसार छोड़कर जाता हूँ, I mean, it's very clear. As long as I am in the world, वो वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि जब तक मैं इस जगत में हूँ I am the light of the world. तब तक मैं इस जगत की ज्योति हूँ। We know that he's not in the world now. He said in John हम जानते हैं कि अब यीशु इस जगत में नहीं है। 17, Father, I'm coming to you. I'm यूहन्ना 17 में यीशु कहता है पिता मैं तेरे पास आता no हूँ longer in the world. और अब मैं इस संसार में नहीं हूँ। Then he gave that responsibility to us. फिर उसने वो जिम्मेदारी हमें दी। He said in Matthew 5:16, मत्ती 5 sorry, Matthew 5:14, मत्ती 5:14 में यीशु ने हमसे कहा you are the light of the world. He looked at his तुम इस जगत की ज्योति हो। disciples and said, you're the light of the world. उसने अपने शिष्यों को देखकर कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। So if somebody were to ask you, और इसलिए अगर कोई आपसे प्रश्न करे who is the light of the world today? इस जगत की ज्योति आज कौन है, Say we. हम कहेंगे मैं, हम We as a church. हम एक कलीसिया होने के नाते। You say not Jesus? आप कहोगे यीशु नहीं क्या? No, Jesus said he was the light of the world as long as he was in the world. नहीं, यीशु ने कहा कि वो इस जगत की ज्योति है जब तक वो इस संसार में है। I believe his word in John 9 verse 5. यूहन्ना 9:5 में यीशु के वचनों पर मैं विश्वास करता हूँ। And then he turned around to us and said, you're the light of the world. Now that's an awesome responsibility. और फिर वो पीछे मुड़कर हमसे कहता है कि अब तुम इस जगत की ज्योति हो और ये एक अद्भुत ऐसे जिम्मेदारी है। And that's why we don't like to say it. और इसी वजह से हम ये कहना नहीं चाहते। We don't like to say we're the light of the world because हमें ये कहना पसंद नहीं कि हम जगत की ज्योति we हैं, look at the way we're living. क्योंकि हम देखते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। And some of us may be pretty ashamed of the way we live. और शायद हम में से कुछ लोग बहुत शर्मिंदा हैं हम जैसे जीते हैं उससे। Say, how can I say we are the light of the world? और हम सोचते हैं कि हम कैसे कहें कि हम जगत की ज्योति हैं। That's what should bring us down on our faces and say, why are we living like that? यही बात है जिसकी वजह से हमें मुंह के बल गिरकर ये कहना होगा कि हम ऐसे क्यों जी रहे हैं। Why are we living in a world? Why are we living in a way that we are not the light of the world? हम ऐसे क्यों जी रहे हैं कि हम इस जगत की ज्योति नहीं है। It's seriously wrong. कोई बात बिल्कुल गंभीरता से गलत है। Okay, if you're newly born again, ठीक है, अगर आपका नया नया जन्म हुआ है तो for a couple of years, that's okay. कुछ वर्षों तक वो ठीक है। It's like little children take about 2 years to get steady on their feet. ये छोटे बच्चों जैसा है जिनको अपने पैरों पर चलने के लिए स्थिर होकर चलने के लिए लगभग 2 साल लगते हैं। And we read in the Old Testament that और पुराने नियम में हम पढ़ते when हैं God brought the Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर लाया it took 2 years for them to come to the borders of Canaan. और 2 साल लग गए उनको कनान देश की सीमा पर पहुंचने के लिए। You read that in Deuteronomy 2:14. Then आप व्यवस्था विवरण दूसरे अध्याय के 14 वचन में पढ़ते हो। after 2 years they came to the borders of Canaan. 2 साल के बाद वे कनान देश की सीमा तक आप पहुंचे थे God told them to go in, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अंदर जाकर जीत लो, and they didn't go in. और वे अंदर नहीं गए। So they wandered for another 38 years. और इसलिए अगले 38 वर्षों तक वे भटकते रहे। So what I see from that is और उससे मैं ये देखता हूँ Canaan is a life of victory and कनान जो है वो एक विजय का जीवन है triumph.
विजय और जीत का जीवन है, picture of it. And ये उसका चित्र है कनान देश। God expected them to come to that in 2 years. और परमेश्वर की अपेक्षा थी कि 2 वर्षों में वो उस जीवन तक आ जाए। So I see that as God's plan. और मैं देखता हूँ कि ये परमेश्वर की योजना है That if you're born again, if you're really sincerely born again, कि अगर आपका नया जन्म होता है, अगर सच्चाई में वास्तविकता में आपका नया जन्म हो चुका है, तो in 2 years you should come to a life of victory. 2 वर्षों में आपको एक विजय के जीवन में प्रवेश करना है। If you haven't, I think part of the reason is अगर आप उस जीवन में प्रवेश नहीं कर चुके हो, तो मुझे लगता है जो कारण है उसमें से एक कारण ये हो सकता है, there's not been a proper repentance. एक सही मन फिराव नहीं हुआ है। That means इसका मतलब we are born facing sin with God on our back. हमारा जन्म जब होता है तो हम पाप की ओर देखते हैं और परमेश्वर हमारे पीठ के पीछे होता है। Repentance means a 180-degree turn मन फिराव का मतलब हम 180 डिग्री पीछे मुड़ जाते हैं, where God is in front of us and sin and the world are behind us. जहाँ परमेश्वर हमारे सामने होता है और पाप और ये संसार हमारे पीछे होता है। Now, with many Christians, अब कई मसीहों के साथ that is not true. ये सच नहीं है। Sin and the world are not behind them. पाप और ये संसार उनके पीछे नहीं है, And that's because और ये इसलिए they heard an improper gospel. कि उन्होंने एक अपरिपूर्ण सुसमाचार सुना है। A gospel that emphasized faith, believe, just confess your sin and believe. एक ऐसा सुसमाचार जिसने इस पर जोर दिया कि विश्वास कीजिए, आपके पापों का अंगीकार करके विश्वास कीजिए, And did not emphasize the most important thing, और सबसे महत्वपूर्ण बात पर उन्होंने जोर नहीं दिया, repentance. मन फिराओ। So, without repenting or repenting 90 degrees and और इसलिए मन फिराव के बजाय या आधा मन फिराने के बजाय, मतलब 90 डिग्री मुड़ने के बजाय, 180 degrees, मतलब 180 डिग्री न मुड़ते हुए अगर आप केवल 90 डिग्री मुड़ जाते हो, one eye on the world, one eye on God. जहां आपकी एक आंख इस संसार पर है, एक आंख परमेश्वर की ओर है, They try to believe and confess their sin. वे कोशिश करते हैं विश्वास करने की और अपने पापों का अंगीकार करने की, And they imagine, और कल्पना करते हैं I'm okay, you're मैं ठीक हूँ, not okay. आप ठीक नहीं हो। The message that John the Baptist brought वो संदेश जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने लाया as a forerunner to Christ और वो मसीह का एक अग्रगामी, मसीह के आगे जाने वाला वो था, is the message that is the forerunner of the gospel. वही संदेश है जो सुसमाचार के संदेश का भी अग्रगामी है। The gospel is salvation through Christ, सुसमाचार ये है मसीह के द्वारा उद्धार, but there's a message that prepares the way for the gospel. That's the पर सुसमाचार का मार्ग तैयार करने वाला भी एक संदेश है, message of John the Baptist. और वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का संदेश है, Repentance. मन फिराओ। That is a turning around. वो है पीछे मुड़ना। So just like God sent John the Baptist बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, and he said, I've come here to raise the valleys and और यूहन्ना ने कहा कि मैं आया हूँ घाटी को भर देने के लिए, bring down the mountains and और पहाड़ और टीलों को नीचे करने के make लिए, the crooked places straight और टेढ़ा जो है उसे सीधा करने के लिए, and to remove the rough places and make them smooth. These are और जो ऊंचा नीचा है उसे चौरस या एक सीधा मार्ग बनाने के लिए। 4 different pictures he used about repentance, ये 4 अलग चित्र हैं जो उसने इस्तेमाल किए मन फिराव को दिखाने के लिए। bringing down all the high thoughts and सारे ऊंचे विचारों को नीचे lifting लाना, up all the depressed valleys and सारी जो नीचे गई हुई घाटियां हैं उन्हें भर देना, making the crooked things in our life straight and और हमारे जीवन की टेढ़ी बातों को सही करना, सीधा करना, making the rough places smooth. और ऊंची नीचे जो चीजें हैं उन्हें चौरस बनाना, स्मूथ बनाना। You read that in Luke chapter 3. आप इसको लूका 3 में पढ़ते हो। He was preaching repentance, वो मन फिराव का प्रचार कर रहा था, and that was the preparation और ये तैयारी थी for faith. विश्वास की। Paul said in Acts 20, I preach repentance and faith. पौलुस ने प्रेरितों 20 में कहा कि मैं हर जगह मन फिराव और विश्वास का प्रचार करता हूँ, Everywhere I go. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ। So that is the reason why, और यही कारण है क्यों, and if that's been true in your case, you can see perhaps that is the main reason और अगर ये आपके जीवन में भी सच है तो आप देखोगे कि ये मुख्य कारण है
why people have not grown spiritually or not क्यों लोगों ने आत्मिक उन्नति नहीं की है, come into a life of victory in 2 या क्यों वे विजय के जीवन में प्रवेश नहीं कर चुके हैं years 2 सालों or में, can be here for 5 years या शायद आप यहाँ 5 सालों तक 5 सालों से हो and still be defeated, और अब भी आप हारे हुए हो, even though you've heard and heard and heard and heard, यद्यपि आपने सुना है सुना है सुना है और सुना है, and still you're yelling at each other at home and और अब भी आप एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते हो घर में, still lusting and और अभी भी आप लालसा कर रहे हो pursuing after money and things और पैसे के पीछे जा रहे हो like that, and और ऐसी बातें, you got all the right theory, और आपके सारे सिद्धांत सारी थियोरी सही है, but the light which is the life of Jesus पर वो ज्योति जो यीशु का जीवन है is not shining, वो नहीं चमक रहा, and that's okay. और वो ठीक है। But the sad thing is, it's not bringing us down on our faces दुख की बात यह है कि वो हमें अपने मुंह के बल नहीं गिरा रहा, in weeping and saying, जहां हम विलाप नहीं करते Lord, why isn't that happening? I've been here so long. और हम कहते नहीं कि प्रभु ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ कितने समय से हूँ, And why isn't that happening in our life? और We're ये क्यों हमारे जीवन में नहीं हो रहा, not disturbed by it. हम इससे विचलित नहीं होते, That's a serious thing. ये गंभीर बात है। I've often told people that मैंने कई बार लोगों को बताया है the fact that you sin is not as serious as the fact that you don't weep after you sin. आप पाप करते हो ये इतना गंभीर नहीं है जितना ये गंभीर है कि पाप करने के बाद आप विलाप नहीं करते, रोते नहीं, That's more serious. वो ज्यादा गंभीर है। That shows a lack of sensitivity. ये एक संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है। It's like, when we get a little injury on our hand, ये ऐसा है कि अगर हमारे हाथ पे छोटी सी चोट क्यों ना लग जाए, we immediately react to it and want to do something about it. If you get a आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हो और उसके विषय में कुछ करना चाहते हो। cut, you don't just leave it. अगर आपका हाथ कट जाता है तो आप उसे वैसे ही नहीं छोड़ते, But if you had leprosy, पर अगर आपको कोढ़ हो जाता you wouldn't even feel that तो आपको वो महसूस भी नहीं होता, because lepers don't have sensation. क्योंकि जो कोढ़ी होते हैं उनको कोई दर्द का महसूस ही नहीं होता, उनके हाथ में कोई उनको सेंसेशन नहीं होता, महसूस नहीं होता। So when I sin and it doesn't make me weep, और इसलिए जब मैं पाप करता हूँ और उस पाप की वजह से मैं विलाप नहीं करता, रोता नहीं, it's an indication of our conscience having lost its sensitivity. तो ये इसे दर्शाता है कि हमारा जो विवेक है वो अपने संवेदनशीलता खो चुका है। It's a serious condition. It's spiritual leprosy. ये एक गंभीर अवस्था है, ये आत्मिक कोढ़ है। I know a lot of people who have come to our church in Bangalore मैं जानता हूँ कई लोगों को जो हमारे कलीसिया में आए हैं बेंगलोर में, and who have said to me after a few years there, और वहाँ कुछ वर्ष होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा है, Brother Zach, I don't really believe I was saved till I came here. भाई जैक, मेरा ये विश्वास नहीं है कि मेरा उद्धार हुआ था जब तक कि मैं यहाँ नहीं आया। I said, why? मैंने कहा क्यों? He said, I thought I was born again, and उन्होंने कहा कि मुझे लगता था मेरा नया जन्म हुआ the other church I attended, उस दूसरे कलीसिया में जहाँ मैं जाता था, but I was so defeated by sin, and I realized that I never knew what repentance was. और मैंने ये जाना कि मैं पाप से कितना हारा हुआ था, और मैं कभी यही नहीं जानता था कि मन फिराव का मतलब क्या होता है Till I came here. जब तक मैं यहाँ नहीं I आया। never got a clear understanding of what sin was और पाप क्या है इसका एक साफ समझ ही मुझे कभी नहीं मिली थी until I came here. So जब तक मैं यहाँ नहीं until you आया। understand what sin is, how can you repent from it? अब जब तक आपको यही नहीं मालूम पाप क्या है, आप उससे मन कैसे फिराओगे? If you know where south is, then you can turn around from south and face north. What if you अगर आप जानते हो दक्षिण कहाँ है तो आप पीछे मुड़कर उत्तर की ओर देख सकते हो, don't know where the south is, then how do you turn around and face north? पर अगर आप जानते ही नहीं दक्षिण कहाँ हो तो आप कैसे पीछे मुड़कर उत्तर देखोगे? So if you don't know what sin is, you can't repent. और इसलिए अगर आप यही नहीं जानते पाप क्या है तो आप मन फिराव नहीं कर सकते। So you don't know what darkness is, you don't know what the light is. अगर आप नहीं जानते अंधकार क्या है तो आप नहीं जान सकते ज्योति क्या है। And that I believe is where the devil has blinded so many people. और ये मेरा विश्वास है यहाँ शैतान ने कई लोगों की आंखों को अंधा किया है Concerning what is darkness. इस संबंध में कि अंधकार क्या है। The darkness in our life हमारे जीवन में जो अंधकार है is basically due to our self-centeredness. वो प्राथमिक तौर पर हमारे स्वयं केंद्रित होने की वजह से है।
that our life is centered around myself, कि मेरा जीवन मेरे ही आसपास केंद्रित है, मेरे ही खुद स्वयं के अंदर केंद्रित है। we grow up like that, the entire world हम ऐसे ही बड़े होते हैं और ये पूरा संसार भी lives a self-centered life. वो एक स्वयं में केंद्रित जीवन जीता है, Whether they are politicians or चाहे वो राजनेता हो businessmen or या व्यापारी हो academics or या पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हो mega church pastors. या मेगा चर्च के पास्टर क्यों ना हो, पासवान क्यों ना हो। Very often it's self कई बार स्वयं होता है, projecting themselves. वे अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं। And if my life is self-centered, और अगर मेरा जीवन स्वयं केंद्रित है, खुद में ही केंद्रित है, तो I'm really following the way that Adam went. तो फिर वास्तविकता में मैं उस मार्ग के पीछे चल रहा हूँ जिस मार्ग से आदम गया। Even if I've added a little religion to it, यद्यपि मैंने उसमें थोड़ा धर्म क्यों ना जोड़ लिया हो, because the way Jesus is being preached by many preachers today is क्योंकि जिस प्रकार आज यीशु का प्रचार किया जा रहा है कई प्रचारकों द्वारा, he will bless you. वो तुम्हें आशीष देगा। Well, who in the world doesn't want to be blessed? अब इस संसार में कौन है जो आशीष नहीं चाहता? There's not a single human being in the world who doesn't want to be blessed. एक इकलौता मनुष्य नहीं है इस पूरे पृथ्वी पर जो आशीष नहीं चाहता। Come and Jesus will bless you and he'll आइए और यीशु आपको आशीष देगा, forgive all your sins. He वो आपके सारे पापों को क्षमा करेगा, will take you to heaven वो आपको स्वर्ग ले जाएगा and he will even bless you materially. और आपको भौतिक तौर पर भी वो आशीष देगा And he'll make you healthy. और वो आपको स्वस्थ बना देगा। Well, every human being in the world wants to be healthy. इस संसार का हर एक मनुष्य स्वस्थ होना चाहता Every है human being in the world wants to be wealthy. और हर एक मनुष्य इस संसार का अमीर होना चाहता है Every human being in the world wants to be blessed, and every और हर एक मनुष्य इस संसार का वो आशीषित होना चाहता है human being in the world wants to go to heaven. और हर एक मनुष्य इस संसार का स्वर्ग जाना चाहता है। So the entire world should respond to such a gospel. और फिर ऐसे सुसमाचार को हर And most पूरा people संसार प्रतिक्रिया देगा Do. और वो करता भी है। But Jesus said the way to life is narrow and पर यीशु ने कहा कि जीवन को जाने वाला मार्ग जो है सकरा है very few find it. और बहुत ही कम उसे पाएंगे। So that must be another gospel altogether. और फिर ये पूरी तरीके से अलग ही सुसमाचार है शायद। And that's the deception that's going on in Christendom today. और यही धोखा है जो आज मसीह जगत में चल रहा है।